عزیز طلبہ، آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ آپ کی پوئم نمبر 8 پر مشتمل ہے، جو کہ صفحہ نمبر 72 پر ہے۔ آپ اپنی بکس کا پیج نمبر 72 کھول لیجئے۔ پوئم کا نام ہے اوزیمینڈس، اور جو شاعر ہے اس کا نام ہے پرسی بائسی شیلے، پی بی شیلے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے شاعر کا انٹروڈکشن ہوگا، پھر ہم اس اوزیمینڈس کے تھیمز کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کی تمام ورسز جو ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو شاعر جو ہے یہ پرسے بائسے شیلے ایک انگلش رومانٹک پوئٹ ہے۔ رومانٹیسزم جو ہے یہ ایک موومنٹ تحریک چلی تھی جو کہ لیٹ 18th سینچری میں شروع ہوئی تھی، یعنی جب 18th سینچری ختم ہونے والی تھی تو ایک تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس تحریک کو رومانٹک موومنٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں موجود جو شاعر ہیں جنہوں نے اس موومنٹ کا پارٹ تھے یا جو اس موومنٹ سے جو ہے افینٹی رکھتے تھے، ان پوئٹس کو رومانٹک پوئٹ کہا جاتا ہے۔ ان پوئٹس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ نیچر سے محبت کرتے ہیں، وہ امیجینیشن کو جو ہے امیجینیشن میں چلے جاتے ہیں، تخیلاتی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں سپر نیچرل ایلیمنٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ سپر نیچرل سے مراد ایسی چیزیں جو غیر مرئی ہیں، جیسے جو جن، بھوت، پریاں، دیو، اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو غیر مرئی ہیں، سپر نیچرل ایلیمنٹس ہیں، وہ جو ہیں اپنی اس پوئٹری میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ان کی شاعری جو ہے وہ ایموشن سے بھرپور ہوتی ہے، جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ شاعر جو ہیں ان کو ہم رومانٹک پوئٹ کہتے ہیں۔ تو پرسے شیلے جو ہے یہ بھی ایک رومانٹک پوئٹ ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے شاعری کی وہ اس کی لیرکس میں ہے۔ لیرکس ہم کہتے ہیں پرترنم نظم کو، جیسے کوئی ترنم سے، ردم سے بھرا ہوا گیت جو ہے اسے انگلش میں لیرک کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ شیلی کی جو نظمیں ہیں ان میں بہت ہی زیادہ ردم پایا جاتا ہے، ترنم پایا جاتا ہے، تو چنانچہ یہ ساری کی ساری لیرکس جو ہیں یہ اس کی وجہ شہرت ہیں۔ اور اس کی نظموں میں جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو ہے اپریشن سے نفرت کرتا ہے، اپریشن، ظلم و ستم سے نفرت کرتا ہے، اور فرد واحد جو انڈیویجول ہے اس کی آزادی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور ایک انقلابی سوچ کا مالک ہے۔ یعنی انقلابی سوچ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی بھی انسان کو جو ہے قید و بند کی صعوبتوں سے جو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اس کو سوچ سے، اس کی سوچ میں بھی آزادی چاہتا ہے، اور انڈیویجول کو بھی آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ شاعر جو ہے یہ ریولوشنری ہے، اور اس کی جو وفات ہے وہ ایک طوفان میں، جب سمندر میں یہ سفر کر رہا تھا، اس سمندر میں سفر کے دوران طوفان آیا اور اس میں اس کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی۔ چنانچہ یہ تو اس کا انٹروڈکشن تھا۔ اب ہم آتے ہیں جی اپنی نظم کی طرف، اوزیمینڈس کی طرف، جس کا تھیم کچھ یہ ہے کہ جو انسان کا غرور و تکبر ہے، یہ انسان کو جو ہے فنا کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ٹیمپریری جو چیزیں ہیں، جو ٹیمپریری سکسیسز ہیں، اس کی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں، وہ اسے بہت ہی غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں، لیکن اسے یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ جو لائف، یہ جو اس کی جو سکسیس ہے، یہ جو اس کی کامیابی ہے، یہ اس کی شارٹ لیوڈ ہے۔ یہ ایک سرٹن ٹینیور ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس وقت تک یہ اس کے پاس چیز موجود ہے، اور اس کے بعد اس کی لائف بھی اس سے چھن جانی ہے، اور یہ جو مٹیریل جو اس کے پاس گینز ہیں یہ بھی اس سے چھن جانی ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ وقتی طور پہ حاصل ہونے والی شہرت، یا وقتی طور پر حاصل ہونے والی دولت، یا وقتی طور پر حاصل ہونے والے جتنے بھی میٹیریل ایسپیکٹ ہیں اس پر وہ غرور کرتا ہے، لہٰذا اس کا غرور بھی اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن زمین کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، اور جو ہے انسان کو جو ہے متکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیشہ عاجزی کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
जो टाइटल है ओजीमेंडस, ज़रा इसके ऊपर हम थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। ये ओजीमेंडस जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान जो है उससे माखूज है। लातीनी ज़ुबान में जो वर्ड ओजीमेंडस है इसका मतलब होता है फ़िरौन, और फ़िरौन का जो टाइटल है ये मिस्र के जो बादशाह हैं, चाहे कोई भी बादशाह आ जाए, उसका टाइटल जो खिताब उसे दिया जाता है वो है फ़िरौन। और ये जो नज़म आप पढ़ेंगे यहाँ पर जिस फ़िरौन का ज़िक्र है ये बिल्कुल वही फ़िरौन है जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, और उसका जो नाम है वो है रामेसेस टू, यानी जो फ़िरौन जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है और जो गुरूर व तकब्बर में मुब्तला हुआ और जिसको फ़ना हुआ, तबाही हुई, जिसकी गर्क हुआ, सब कुछ जो उसने ये फेस किया क्लैमिटीज़ को, ये वही है जो कि कुरान पाक में ज़िक्र हुआ, और उसका नाम क्या है? रामेसेस टू। रामेसेस टू उसका नाम है। तो चुनाचे उसका जो मुजस्समा था वो बरतानिया में जब लाया गया, इंग्लिस्तान में म्यूज़ियम में रखा गया, तो जो परसे शैले है इसने जब उस मुजस्मे को देखा तो उसे अपनी इस नज़म का एक थीम मिल गया, और उसने अपनी क्रिएटिविटी से जो है एक नज़म जो है तख्लीक कर दी, और उसको जो है वो कुछ इस तरह से बयान किया कि ये जो मुजस्मे का नॉलेज है, यानी जो मुजस्मे के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये उसे उस म्यूज़ियम से नहीं मिली, बल्कि वहाँ एंटीक लैंड से कोई आने वाला जो शख्स है, मुसाफिर है, उसने उसे बताई हैं ये सारी की सारी बातें उस मुजस्मे की जो टूट फूट का शिकार है। तो आइए हम इसकी वर्सेस पढ़ते हैं और फिर हम इसे समझते हैं कि ये किस तरह से बयान किया गया है। आई मेट, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिससे मुराद शैले अपने आप को जो है पोइट इस पोइम का हिस्सा बनाते हुए कहता है कि मेरी मुलाकात हुई। आ ट्रैवलर एक मुसाफिर से, फ्रॉम एन एंटीक लैंड जिसका ताल्लुक एक कदीम सरजमीन से है। मेरी मुलाकात एक ऐसे मुसाफिर से हुई जिसका ताल्लुक एक कदीम सरजमीन से है। एंटीक का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुरानी, एंशियंट। तो वो पुरानी सरजमीन से मुराद यहाँ पर मिस्र है, यानी ये जो बादशाह था ये मिस्र का बादशाह था जो फ़िरौन था। तो जो ये मिस्र की सरजमीन है वहाँ से कोई मुसाफिर सफ़र करके शैले कहता है मेरे पास आया, और उससे जो मेरी मुलाकात हुई उस मुलाकात में हु सेड, उसने कहा। आगे कॉलन आ गए हैं, कॉलन के बाद हमें मालूम है कि एक्सप्लेनेशन आती है, वजाहत आती है। तो जो कहा है अब उसकी वजाहत है कि अल्फाज क्या थे उसके, वो ये थे कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। टू दो, वास्ट बहुत बड़ी, ह्यूज बहुत बड़ी, एंड ट्रंकलेस और धड़ के बगैर, और धड़ के बगैर लेग्स टांगे हैं, ऑफ स्टोन पत्थर की बनी हुई। दो बहुत बड़ी और धड़ के बगैर टांगे पत्थर की बनी हुई हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो सहरा में मौजूद हैं, सहरा में खड़ी हुई हैं। आगे आगे हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस ये पंक्चुएशन की जो एक अलामत हमने पढ़ी है, एलिप्सिस, इसमें जनाब वो मुनक़ता कर देता है जो स्पीकर है अपनी बात को खुद ही, और फिर वो आगे दोबारा शुरू करता है। नियर देम, उनके करीब ही, उनके करीब ही, ऑन द सैंड, रेत के ऊपर, हाफ संक, आधा दफन। सिंक डूबने को कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म संक है जो कि पास्ट पार्टिसिपल की सेंस में यूज हुआ है। हाफ संक, आधा मदफन। आ शैटर्ड विजेज लाइज, एक टूटा फूटा चेहरा जो है वो मौजूद है, पड़ा हुआ है। शटर कहते हैं टूट फूट का शिकार, ब्रोकन, और विजेज कहते हैं चेहरे को। लाई जो है इसका मतलब होता है पड़ा होना, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक टूटा फूटा चेहरा पड़ा है। whose frown and wrinkled lips, जिसके माथे पर पड़ने वाले बाल और उसके होंठों पर पड़ने वाली झुर्रियां। फ्राउन कहते हैं माथे पर पड़ने वाले बल को, वो जो गुस्से की हालत में माथे पर बल पड़ते हैं उसको फ्राउन कहते हैं। अगर हम एक और उर्दू का लफ्ज इसके लिए ढूंढें तो वो होगा त्यूरी।
اور رنکلڈ لپس یعنی ہونٹوں پر بھی جھری پڑ جاتی ہے. غصے میں جب انسان ہو تو ماتھے پر بل ہوں گے اور اس کے ہونٹوں پر جھریاں پڑ جائیں گی کیونکہ وہ شرنک ہوں گے، اور شرنک ہوتے ہی جیسے ہی وہ شرنک ہوں گے اور پھر جو لپس ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ جھریاں پڑ جائیں گی. اینڈ سنیر اور نفرت ہوگی آف کولڈ کمانڈ، اس کے بے رحم حکم کی. کولڈ کا مطلب ہے بے رحم اور کمانڈ کہتے ہیں حکم کو. تو جی وہ جو شاعر ہے وہ بتاتا ہے کہ جی مصر کی قدیم سرزمین سے ایک مسافر جب آیا تو اس سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے کچھ بتایا اسے. اس کے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ آیا ہے مصر کی سرزمین سے، وہ صحراؤں کی سرزمین ہے، اور اس صحراؤں کی سرزمین میں اس نے کیا دیکھا؟ اس نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر دو لیگز ہیں، دو ٹانگیں ہیں جس کے اوپر دھڑ موجود نہیں. اور یہ جو ٹانگیں ہیں یہ بنی کس چیز کی ہیں؟ یہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑی ہیں، واسٹ اتنی بڑی ہیں، اور یہ صحرا کے وسط میں وہاں پڑی ہوئی ہیں. اور ان کے قریب ہی جو ریت ہے، ریت کے اوپر ایک ہاف سنک آدھا جو دفن ہے ریت کے اندر، ایک ٹوٹا پھوٹا چہرہ وہ وہاں پڑا ہے، اور اس کے جو ماتھے پر بل ہیں وہ بھی پڑے ہیں، اور اس کے ہونٹوں پر جھریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے جو حکم میں موجود نفرت ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے اس کے چہرے پر. یعنی وہ جو چہرہ ٹوٹ کر گرا پڑا ہے اس کے قدموں میں، وہ بادشاہ جو کبھی بہت ہی متکبر تھا اور جو کبھی بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا، جو اپنے حکم میں، جس کے حکم میں نفرت تھی، جس کے ماتھے پر بل پڑتے تھے، اس کے ہونٹوں پر رنکلز پڑتے تھے، اب وہی بادشاہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور آج اس کا جو سر، جو کبھی غرور کی علامت ہوتا تھا، سر کے اوپر جو ہم ٹربن پہنتے، پگڑی پہنتے کہ سر کی یہ پگڑی ہے اور میرا یہ فخر ہے، غرور ہے، اب وہی سر جو ہے، جو ہمارا فخر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شاعر کہ وہ اب اس کے پیروں میں آ پڑا ہے. یعنی یہاں پر آئرنی ہے، یعنی سچویشن جو ہے وہ سچویشنل آئرنی ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کا جب بادشاہ کا نام ہمارے ذہن میں، ہمارے سامنے کوئی پرناؤنس کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً ہی اس کا جاہو جلال پیدا ہو جاتا ہے. بہت ہی زرق برق والا لباس، اور وہ جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھا ہے، اور وہ شان و شوکت ہمارے ذہن میں بیدار ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہمارے سامنے ڈیمونسٹریشن ہے، یہ جو اس وقت ہمارے سامنے بادشاہ سلامت موجود ہیں، وہ بیچارے اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ وہ جو چہرہ ہے، جو غرور تھا اس کا سر کے اوپر تھا، وہ اب اس کے پیروں میں پڑا ہے، آدھا ریت میں دفن ہے، آدھا ریت سے باہر ہے، اور اس کے چہرے پر ویسے ہی ظلم موجود ہے جو لوگوں کے سامنے وہ ظلم بھرے احکامات جاری کرتا تھا. ماتھے پر ابھی بھی غصہ ہے، بل پڑے ہوئے ہیں، اور ہونٹوں پر ابھی بھی جھریاں ہیں، جبکہ وہ جو ہے بالمکمل طور پہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اس کے باوجود بھی یہ سارا کا سارا کچھ اس کے چہرے پر موجود ہے. ٹیل، یہ سارا کا سارا جو ہے اس کا فراؤن اور جو رنکل لپس ہیں اور کولڈ کمانڈ ہے، یہ ٹیل، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دیٹ کہ اٹس اسکلپچر، جو اس کا مصور تھا، یعنی اس مجسمے کا جو بنانے والا تھا، ویل دوز پیشنز ریڈ، ویل بہت ہی خوب انداز میں، دوز ان پیشنز جذبات کو، ریڈ اس نے پڑھا. یعنی یہ جو اس نے مصور نے مجسمہ بنایا ہے وہ اتنا کاریگر تھا اور اتنا زبردست قسم کا مصور تھا کہ اس نے بالکل ویسے کے ویسے ہی ماتھے پر پڑنے والے بل بنا دیے جو کبھی اس کی ریئل لائف میں بادشاہ سلامت کے ماتھے پر پڑتے تھے. اس نے ہونٹوں پر لپس جھریاں ویسی ہی بنا دی جیسی کہ ریئل لائف میں اس کے ہونٹوں پر پڑتی تھی، اور نفرت جو چہرے پر موجود ہوتی تھی اس کی، وہی چہرے کی نفرت جو ہے وہ ابھی بھی اس کے چہرے پر جو ہے موجود ہے. تو اس مصنف نے، اس مصور نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ سارے کے سارے جو پیشنز تھے بادشاہ سلامت کے، ان کو خوب انداز میں پڑھا. which yet survive، وہ پیشنز جو ابھی تک سروائیو کیے ہوئے ہیں، جو موجود ہیں. کہاں پر؟ stamped on، مہر لگی ہوئی ہے، these lifeless things، ان بے جان چیزوں کے اوپر.
इन जज्बात की मोहर इन बेजान चीज़ों पर लगी हुई है। ये जो मुजस्मा है ये बेजान चीज़ है, इसका जो सर टूट कर गिरा है ये बेजान चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है पैशंस की, वो पैशन बिल्कुल रियल हैं। वही पैशन है जो रियल लाइफ में कभी बादशाह सलामत के चेहरे पर मौजूद थे, और अब जब वो टूट फूट का मुजस्मा शिकार है, उसके चेहरे पर जो पैशन है बिल्कुल वही पैशन हैं जो रियल लाइफ में हुआ करते थे। The hand that mocked them, वो हाथ जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। मोक कहते हैं मजाक उड़ाने को, और देम यहाँ जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है उन्हीं पैशंस के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि उसका जो गुस्सा है, जो रिंकल लिप्स हैं, जो फ्राउन है। तो ये जो हाथ है मुसव्वर के, इन मुसव्वर के हाथों ने उन पैशंस का मजाक उड़ाया। आयरनी यही होती है ना कि हम किसी के ऊपर तंज करते हैं, कोई आपके सामने आता है कि भाई साहब आप आज लेक्चर गुजर गया आधा, तो आप क्लास में आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूं कि जनाबे वाला आप बहुत जल्दी आ गए हैं, तो मैंने क्या किया, आयरनी की है। तो बादशाह सलामत को तोड़कर और उसके चेहरे पर वो प्रिंट कर दिए, नक्श कर दिए। जो टूटा फूटा बादशाह है उसके चेहरे पर गरूर स्टैंप कर दिया। तो बादशाह सलामत के उन जो पैशंस थे, उन सब पैशंस का किसने मजाक उड़ाया है? इस मुसव्वर ने, यानी उसके ऊपर वो जो स्टैंप किए हैं वो टूट फूट का शिकार है। तो जो मुसव्वर है उसने क्या कमाल तरीके से जो बादशाह सलामत है उसके गरूर को मट्टी में मिला दिया। एंड दी हार्ट दैट फेड, और वो जो दिल था उस मुसव्वर का वो इन जज्बात की वजह से फेड भर चुका था। फीड कहते हैं खुराक लेने को, फेड खुराक ली, यानी खुराक लेना, यानी इतना ज्यादा पैशंस जो थे उसने उनको देखा हुआ था कि वो इनसे इतना दिल उसका भर चुका था कि अब जो था वो इनको मजीद पसंद नहीं करता था। जो अब दिल उसका भर गया है मुसव्वर का, तो उसके बाद फिर कॉलन आ गया कि वो जो दिल भरा है उसके बदले में उसने आगे क्या कहा, उसने लिख दिया एंड ऑन द पेडिस्टल, और इसके पायदान पर दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज नमूदार हैं। जो ये आप दो लेग्स देखी हैं उसने वहां पर सहरा में पड़ी हुई, इन दो लेग्स के ऊपर इसका धड़ मौजूद नहीं, लेकिन इसके नीचे पायदान इसका मौजूद है। जैसे पेडिस्टल फैन होता है उसके नीचे उसका पायदान होता है जिसपे वो ऊपर पूरा के पूरे पेडिस्टल पे पूरा फैन स्टैंड करता है। तो इसी तरह ये जो लेग्स हैं इसके नीचे इसका पेडिस्टल है, और उस पेडिस्टल के सामने जनाब इतनी सी जगह मौजूद है जहां कुछ अल्फाज जो हैं वो लिखे जा सकें। तो वर्ड्स अपीयर, वहां पर कुछ वो अल्फाज नमूदार हैं, जाहिर हैं। वो अल्फाज क्या हैं जी? इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, माई नेम इज ओजिमेंडस, मेरा नाम ओजिमेंडस है, मेरा नाम फिरौन है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। अब फिर कॉलन आ गया, और ये जो बादशाह सलामत है अब वो वजाहत कर रहा है मैं कैसा बादशाह हूँ। वो कहता है लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, मेरे जो काम हैं, मैंने जितने बड़े काम किए हैं, ये माइटी, ये का मतलब होता है हाँ, यस, हाँ, माइटी, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं मैंने। एंड डेस्पेयर, और साथ मायूसी भी पकड़ो, यानी मायूसी इख्तियार करो। मेरे बड़े बड़े काम हैं, इन कामों को देखो और मायूसी इख्तियार करो। ये जी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, और यहाँ इन अल्फाज में बहुत ज़बरदस्त किस्म की आयरनी मौजूद है। बादशाह सलामत जो कि जो है शान और शौकत की अलामत है, बादशाह सलामत का मुजस्मा इस वक्त टूट फूट का शिकार है, जो कि सिचुएशनल आयरनी है। यानी जो सिचुएशन है बेसिकली वही एक आयरनी है कि हम अगर इस टूटे फूटे मुजस्मे को बादशाह कह देंगे तो ये अलामत जो है ये क्या होगी? ये आयरनी है। ये सिंपल सी एग्जांपल है आयरनी की कि एक टूट फूट का शिकार जो है मुजस्मा है, हम उसे कहें जनाब ये बादशाह है, तो बादशाह कहना उसे जो है वो आयरनी होगा। तो ये तो पहली ही सिचुएशनल आयरनी है। उसके बाद ये अल्फाज जो हैं इसको बहुत ही इंटेंसिफाई कर देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं इस चीज़ को, और ये स्पेशल किस्म की आयरनी की एग्जांपल बन जाती है कि वो जो टूटा फूटा मुजस्मा है वो अपने आप को फिरौन कह रहा है, बादशाहों का बादशाह कह रहा है, और बड़े बड़े काम कहता है कि मैंने कर रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े काम कि वो खुद बेचारा टूट फूट का शिकार है और अपने कामों का जिक्र वो कर रहा है। तो यानी ये यहाँ पर वो अल्फाज जो हैं वो रियलिटी के साथ मैच नहीं करते, यानी अल्फाज में वो फिरौन है लेकिन हकीकत में क्या है, वो टूटा फूटा मुजस्मा है।
नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग कुछ भी नहीं, बिसाइड इसके साथ, रिमेन्स बाकी बचता है, इसके बाद साथ बाकी कुछ नहीं बचता है। राउंड द डिके, इस तबाही के इर्द गिर्द, राउंड कहते हैं इर्द गिर्द और डिके कहते हैं तबाही को। इस तबाही के इर्द गिर्द, किस चीज की तबाही? ऑफ दैट क्लोजल रैक, इस बहुत ऊंचे और बहुत बुलंद खंडर की। क्लोजल का मतलब है बहुत ऊंचे कद का, और रैक कहते हैं खंडर को। इस बहुत ऊंचे कद के खंडर के तबाही के इर्द गिर्द बाउंडलेस एंड बेयर, लामुतनाही है और वसी है। द लोन एंड लेवल सैंड, तन्हा और हमवार रेतला रेगिस्तान है। स्ट्रेच फार अवे, जो दूर तक फैलता है, जो दूर तक फैला हुआ है। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, फार अवे दूर दराज तक। तो बाउंडलेस, बाउंड कहते हैं हदूद होना, और लेस का मतलब है हदूद ना होना, लिमिटलेस होना, यानी जिसकी हदूद ही ना हो। तो रेगिस्तान हमारे लिए ऐसे ही है, हम कॉन्सेप्ट इसका ये ले सकते हैं जैसे समंदर है जनाब, उसकी बेर इतनी दूर दूर तक हमें कोई जो है वो बाउंड्री नज़र नहीं आती। तो इसी तरह जो सहरा है ये भी बाउंडलेस है, और ये पूरा का पूरा जो है समंदर ये तन्हाई में है, और इसका जो सहरा है, ये सारा का सारा सहरा जो है ये इस बादशाह सलामत का मस्कन है। तो ये जो बहुत बड़ा मुजस्समा है, अब ये तबाही है इसके इर्द गिर्द, और ये बादशाह सलामत जो हैं तन्हाई में मौजूद हैं। कभी एक दौर था कि ये जनाब इसके गिर्द तमाम नौकर चाकर होते थे और ज़िंदगी की आसाइशें होती थी, और जनाब ये तमाम सहूलियात ज़िंदगी से जो है वो अपने आप को आसाइशों में जनाब महव रखता था। लेकिन आज क्या है, ये जो टूट फूट का शिकार मुजस्समा है, ये बता रहा है इस ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में कि इंसान जो है एक दिन फना होने वाला है, और उसके बाद उसके पास उसका जो गुरूर और तकब्बुर है वो बिल्कुल इसी तरह खाक में मिल जाएगा, जिस तरह से इसका जो चेहरे पर गुस्से से भरा हुआ जो चेहरा है वो रेत के अंदर दफन है, और जिस्म इसका टूट फूट का शिकार है। अब वही शख्स जो अपने चार नौकर चाकरों के गिर्द के दरमियान में मौजूद रहता था, अब वो कहाँ पड़ा है? लोन, तन्हाई में पड़ा है। ऐसी तन्हाई में जो सहरा की तन्हाई है, जहाँ दूर दूर तक कहीं कोई इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो मौजूद नहीं है, वो उस तन्हाई में है, और वहाँ सहरा के अंदर ये तबाही जो है वो उसके मुकद्दर में है। उसका मुजस्समा जो है वो खंडर बन चुका है, और इसकी तबाही के अलावा इसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। वो शख्स जो कभी अपने आप को खुदा कहा करता था, आज वो उसकी जो खुदाई थी वो सारी की सारी जो है वो गर्क हो चुकी है, और वो आज अपने इस अंजाम को पहुंचा है कि उसके मुजस्मे की भी हालत हमारे सामने है, जो एक आयरनी की सूरत में हम उसे देख सकते हैं कि हकीकत और जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो चनाचे हमने जो ये पोइम पढ़ी है ओzymandias, इसको मैं वंस अगेन समराइज करता हूँ कि मुसन्नफ जो शायर है वो कहता है कि मेरी एंटीक लैंड से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात हुई, जिसने मुझे एक ऐसे मुजस्समे के बारे में बताया जो टूट फूट का शिकार था, लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुरात थे गुस्से के वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके मुसव्वर ने उसके चेहरे पर इस तरह से प्रिंट कर दिए थे कि जैसे वो जो है उसके पैशंस का मजाक उड़ाता हो। और ये जो उसके चेहरे पर प्रिंट किए हुए जज्बात हैं, ये सारे के सारे इसलिए लिखे गए थे कि वो जो मुसव्वर था उसका दिल उसके इन जज्बात से भर चुका था। चुनांचे उसने खूब मजाक उड़ाया, और उसके इस पेडिस्टल पर ये भी लिखा कि वो मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे काम बहुत बड़े बड़े हैं, और जो कि एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है आयरनी की कि वो टूट फूट का शिकार शख्स जो है वो अपने आप को बादशाह कहता है। तो ये जी इंसान वो लास्ट में हमें ये कहता है कि जी इंसान जो है जब तबाह हो जाता है, फना हो जाता है, तो हर चीज़ जो उसकी है, जो उसकी कामयाबियां हैं, जो उसकी मटेरियल गेन्स हैं, वो सारे के सारे उसके साथ ही ज़मीन में दफन हो जाते हैं। वो शोहरत, वो तमाम जो कुछ उसने ज़िंदगी में हासिल करने के लिए फेयर एंड फाउल मीन्स यूज़ किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर इंसान जिस पर मुतकब्बर होता है, गुरूर करता है, वो सारा का सारा गुरूर उसका खाक में मिल जाता है।
تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.